After our breakfast, we left for Bandipur, which was our next destination. Way to Bandipur was very irritating due to the road construction. पूरे रास्ते में मिट्टी और धूल उड़ रही थी और कच्चा पक्का रास्ता था. Nearing to Bandipur, we reached the small ghat section, which was fun to ride after a bumpy and dusty time we had. Bandipur is primarily known for its preserved old-time cultural atmosphere. In olden days, it used to be an important stop along the Indo-Tibet trade route. With them, they brought their cultural heritage and architecture, which basically has remained unchanged till this day. In Bandipur, we stayed at the luxurious hotel Darbar Himalaya. लोकेश, बंदीपुर की खासियत उसके बाजार स्ट्रीट के वाइब्स में है. चलो तो लेट्स चेक आउट द बाजार स्ट्रीट एंड थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते हैं. यहाँ बाजार स्ट्रीट में पुराने नेवा आर्किटेक्चर के एंटीक वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें कैफेस और स्टे के लिए होटल्स भी बनाए हैं. अच्छा है, यहाँ स्ट्रीट में व्हीकल्स प्रोहिबिटेड हैं. यहाँ हमारी दोस्ती हिमालयन कैफ़े ओनर मिस्टर जितेंद्र के साथ हुई. हमने वहाँ डिनर किया और खूब बातें की. उन्होंने हमें नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग we had a very personal and amazing time for the breakfast at Himalayan Cafe with Mr. Jitendra and his family. प्रैक्टिस कीजिए. आप लोग का नाम किससे हमारे नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं. बंदीपुर के खाने में जितना स्वाद है उतना ही यहाँ के लोगों में मिठास है. वी वर नॉट फीलिंग लाइक लिविंग बंदीपुर, बट हम तो मुसाफिर हैं, एक जगह रुक नहीं सकते और हम काठमांडू के लिए निकल पड़े. बट वी आर श्योरली कमिंग बैक वंस अगेन इन फ्यूचर, क्योंकि अब तो यहाँ हमारे दोस्त भी बन चुके हैं. भावेश, यहाँ के माहौल में एक अपनापन लग रहा है. सच में लोकेश, it was a quaint little village with beautiful houses and structures. और यहाँ के लोग इन हाउसेस और स्ट्रक्चर को एक अलग ही चार्म देते हैं. Very true, as the cleanliness made more tourist friendly. और वो लाइब्रेरी देखी ना, कितनी खूबसूरत थी, जहाँ बच्चों के लिए हमने पेंसिल सेट्स बांटे. और वो प्राचीन टेम्पल्स पुराने कल्चर की याद दिलाते हैं. Wow, what an experience we had. फिर वो डस्टी रोड से निकलते हुए हम शाम को पहुंच गए काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल. वहाँ हमने धामेल स्ट्रीट पे
एक होटल में 2 रूम्स बुक कर दिए। थामेल has been the center of the tourist industry in Kathmandu for over 4 decades. हमारे लाइन ऑफ प्लान में हमने ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट देखने का मन तो बना लिया था, और काठमांडू आए और माउंट एवरेस्ट नहीं देखा तो क्या देखा भाई। आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस वी बुक एवरेस्ट फ्लाइट with Yeti Airlines, which costed us 14,000 NPR. Our 50-seater flight was right parallel to the peak of Mountain Everest. Finally, we get the glimpse of the summit of the great Mount Everest. It lies at a whopping height of 29,031 feet above the sea level. It has always been my dream to see Mount Everest. And yes, today it's accomplished. To our surprise, Yeti airline crew ने फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया to acknowledge and congratulate us for riding all the way from India to Nepal. Ladies and gentlemen, may I have attention please? On behalf of the airlines and the entire crew member, we would like to congratulate Team Junaid Abara for rising from Mumbai to Nepal and completing the Nepal tour very successfully. Hope you enjoy your flight. Stay at Nepal and we look forward to see you again. Thank you. चलो अब पशुपतिनाथ टेम्पल में शिव जी के दर्शन करने। यहाँ से फिर हम भक्तपुर दरबार स्क्वायर पहुंचे। इट इज अ फॉर्मर रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स comprising of ancient structures and scriptures. There are historical monuments which will give you a glimpse of ancient Nepal. After enjoying the nightlife of Kathmandu, next day we left early to cross the border to reach back to Varanasi in India. भावेश, नेपाल से हम निकल रहे हैं जिसकी जुदाई में नेपाल रो पड़ा है और मूसलाधार बारिश हो रही है। अरे बात तो सही है, but these mountain roads are full of slush and puddle. Riding is really difficult. वो तो अच्छा है अपना लगेज राजेश मामा और युवराज के साथ गाड़ी में है, but I doubt whether we will be able to cover up the distance. हम लोग जैसे तैसे अपने पैरों के सपोर्ट के सहारे धीमी गति से कादव कीचड़ वाले घाट के रास्तों पे चलाते जा रहे हैं। अभिजीत, संभल भाई, तेरी बाइक तो इधर से उधर जा रही है। Bhavesh and Abhijit, be careful guys. There are multiple landslides ahead. अरे ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कुछ तो गड़बड़ है अन्ना।
We came to know through locals that there have been multiple earthquakes while we were riding. बारिश और भूकंप की वजह से मल्टीपल लैंडस्लाइड हो रही है। हम लोग सुबह से बारिश में चला रहे हैं और हम सर से पैर तक, हम और हमारे गियर्स पूरे गीले हो चुके हैं। भावेश, तेरा डाउट सही है that we will not be able to cross the border today. We are totally exhausted and decided to halt 40 kilometers before the border at Amlekganj, where we found a hotel, Quick 21 Riverside, which was just next to the highway. After an overnight rest, we left for the border next day to enter India. सफर के अंतिम चरण में है। जी हाँ, बिल्कुल सही। बनारस, काशी, महादेव जी की नगरी। ऐसे कहते हैं ना, प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक सब शिव है। यहाँ हमारे स्टे का फर्स्ट क्लास बंदोबस्त हमारे नकलोई नवाब विनय लखानी जी ने होटल मेरेडिन में किया था। पहुंचते ही हम चले गए दशमशेष घाट गंगा आरती के लिए। बाय गॉड, इतनी ऊर्जा और पावर महसूस हो रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में और तुझ में है एक फर्क, मुझ में और तुझ में है एक फर्क। मैं नर हूँ, तुम हो नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। अगले दिन सवेरे हम लोग भोर बहे निकल पड़े नमो घाट। वहां पर मोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। नाव में बैठकर सूर्योदय का अद्भुत आनंद उठाया। अब बज चुके हैं 11 और हम यहाँ आए ना आए दोबारा, तो झट से चल पड़े काशी मंदिर की ओर। यहाँ फिर हमारे लखनवी नवाब विनय लाखानी जी ने हमारे लिए वीआईपी दर्शन का बंदोबस्त किया था। मस्त दर्शन करके जोर से नारा लगाया, हर हर महादेव। Special thanks to Prakash Mama, who joined us all the way from Mumbai to Varanasi to accompany us for our return journey. Me, Lokesh, Rajesh and Prakash Mama
निकल पड़े फाइनली टुवर्ड्स मुंबई फॉर आवर होम स्वीट होम। आफ्टर अ ब्रेक एट नागपुर फॉर डिनर एंड refuel, we started towards Mumbai on the spectacular Nagpur-Mumbai Samruddhi Express highway. We reached home by 7 in the morning. It was an unbelievable feat to complete 1500 kilometers Varanasi to Mumbai within 24 hours. Thank you. तो ऐसे हमारी नेपाल ट्रिप बहुत मुश्किलें और दोस्तों के साथ एंड हो गई। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही नए एडवेंचर और दोस्ती के नए सफ़र के साथ अगली वीडियो में नए ट्रिप पे।